Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. In last lecture, we have seen types of attributes, right? Which types are there? Do you remember? Yes. Yes, ma'am. Which types are there? Nominal attributes, binary attributes, Hmm? ordinary attributes, numerical attributes. Right. Nominal, then binary, ordinal, and numeric attributes. And in numeric attributes, we have seen two types. Which are those? Ma'am, internal, scaled or ratio scaled. Interval scaled and ratio scaled. Right? Interval. Yes, ma'am. Okay. So those four are basic types of attributes. But sometimes, see, when we have attribute in the form of label, we call them as a discrete attributes. And when we have attribute in the form of some continuous value or some real number, we call them as a continuous attribute. So based on this, again we have classification of attributes into two types: discrete and continuous. Got it? So your hair color will fall into discrete. Then your binary attribute will fall into discrete attribute, whereas numeric attributes will fall into continuous attribute. Okay. So this discrete attribute has finite or countably finite set of values, right? So for example, hair color. So in hair color, these values will include black, brown, blonde, red, etc. So this is what? This is finite set of values. So this hair color will have some finite value. So discrete values has some finite or countably infinite set of values. So that means, let's say, you can take example of gender. So in gender, male and female is there. This can be the discrete. Okay. Like one example I have taken here, medical test. So positive and negative. So it is a finite set of values, and such attributes are called as discrete attributes. So previously we have seen nominal, then binary. After that we have seen ordinal, right? All these are Yes, ma'am. discrete attributes. In nominal, what was there? This hair color is a type of. Yes, hair color is a type of Nominal attribute. nominal attribute, right? Then in binary, we can take this medical test. And what was there in ordinal? Meaningful meaning, ma'am. Sorry, Uh, binary at. Sorry, ma'am. what is there in ordinal? Example, give me one example. See, when you Ma'am, see, huh, size is small, large, right, medium. size. So when you see this ordinal, that means we consider the order. So here the examples were some size or a rating, right? So all these are discrete attributes. Got it? Yes, ma'am. Okay. Then next is continuous attribute. So last type we have seen in attribute type was numeric attribute, right? And numeric attribute we have seen interval scale and ratio scale.
interval, and Yes, ratio. ma'am. So these numeric types are nothing but the continuous attributes. Okay. So these continuous attributes have infinite number of possible values and which are represented as real numbers. Examples are temperature, height, weight, age. These all are continuous attributes. Okay. So age, when we say 25.5, is a continuous attribute. But when we say young or adult or senior citizen or old age, right? These are what? Ordinal attributes. These are ordinal attributes, or in terms of this discrete and continuous, these are discrete attributes. Okay, and when we say exact age in real number, it is continuous attribute. Okay, so continuous Oh, attributes are represented as real numbers, and as we know, okay, ma'am. there is, it is infinite in number, right? There is no fixed set, there is no finite set, the number is infinite. Any doubt in discrete and continuous? No, ma'am. Have you all understood all types of attributes? Yes, ma'am. Okay, good. Now, next we are going to see statistical description of data. Okay, let me again show you that our plan for this particular unit that I included in this slide here. So we have completed with all the attribute types, right? All attribute types we have covered. Now, second major point we are going to see in this unit is statistical measures. Okay, in statistical measure we'll see central tendency and dispersion. Okay, so now we are going to start with the statistical measures. Okay, so in statistical description we have measure of central tendency, measure of dispersion, and then we'll see how to visualize that data. Okay, how to visualize that description of data that we are going to see here in graphic display of data description. So basically for understanding this graphic display, you should understand this measure of central tendency and measure of data dispersion. Okay, so let us start with measure of central tendency. Just a second. Yes, Shivam, any doubt? मैम ये हिंदी से भी एक्सप्लेन कर दिया गया क्योंकि मैम हम लोगों को एग्जाम हिंदी से ही लिखना है और हम लोगों का पेपर भी हिंदी से ही आएगा सारा चीज बिकॉज हिंदी यूनिवर्सिटी है मैम ये तो बाई लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं मतलब इंग्लिश से भी हिंदी से दोनों भी समझ ओके ओके, आपको पेपर हिंदी में लिखना पड़ता है, ये हिंदी में आप कैसे लिखोगे? मैम वही तो दिक्कत है हिंदी में ही ये लिखना जो है पड़ेगा मुझे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। मैम जैसे हम लोग 30 और 70 का यूज कर सकते हैं 30% इंग्लिश यूज कर सकते हैं बाकी 70% हमें हिंदी ही लिखना पड़ेगा ओके, ठीक है, मैं हिंदी में तो आपको मतलब सिखा सकती हूँ, लेकिन ये जो टेक्निकल टर्म्स है वो हिंदी में मतलब कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे स्टैटिस्टिक के लिए आई कांट यूज संख्या शास्त्र, लाइक दैट, उस लेवल का मेरा हिंदी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं तो मैम सिर्फ ये जो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे मीनिंगफुल जिसका हिंदी में समझ में आता हो एग्जाम्पल हो, वो आप हिंदी में टर्म रखिए। हाँ, तो इससे वो मैं मैं ज्यादा सिर्फ से ज्यादा। हिंदी में सिखा सकती ओके हूँ, मैम। लेकिन ये जो टेक्निकल टर्म्स है, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, जो नो, मतलब टेक्निकल नो मैम। टर्म्स है, हाँ, वो तो मैं इंग्लिश में ही मतलब पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके मैम। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो इसमें हम देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डेटा डिस्पर्शन। ओके, सो हम ये सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट करते हैं। मे बी आपने ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा,
We will go through it with example. Okay. So see, what is measure of central tendency? In data mining, there is one process called data pre-processing, राइट। तो ये जब डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं तो डेटा प्री प्रोसेसिंग करने के लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो भी कुछ डेटा आपको दिया है उसका सेंटर कहाँ पे है, और वो जो सेंटर है वो फाइंड आउट करने के हमारे पास अलग अलग वेज है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज। दीज ऑल आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो भी मेथड्स हम यूज करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए, that are called as measure of central tendency. Okay, so central tendency refers to the location where most of the values in data set fall. Okay, तो ये हम देखेंगे कि what is mean, median, mode and mid range। आपने पढ़ा है ये mean, median, mode? यस मैम। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है आपको? हाँ मैम। ओके, तो क्या होता है मीन, बता सकता है कोई? यस, नहीं पता? Okay, so let us see this mean. Okay, mean is the most common measure। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज द फॉर्मूला। तो अगर आपको ऐसा कुछ सेट दिया है जो कि सैलरीज है, गिवन सैलरीज, एंड दीज आर द सैलरीज इन 1000। तो अगर आपको इसका मीन सैलरी निकालना है तो आप क्या करोगे? यू विल एड ऑल दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो जैसे ये 12 एलिमेंट है, 12 लोगों की सैलरी का डेटा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? वी विल ऐड ऑल दीज नंबर्स। सो 30 प्लस 36 प्लस 47 ये सब ऐड होगा एंड डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये जो नंबर आता है दिस इज कॉल्ड एज मीन। ओके, तो द मीन सैलरी हियर इज 58,000। गॉट इट? सिंपल। एवरेज मीन इज नथिंग यस बट मैम। द एवरेज। यस मैम। Okay. Now there is one disadvantage of mean। का एक disadvantage है, वो क्या है कि mean is useful measure but it can be influenced by outliers। तो जैसे आपके पास ये डेटा है, अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया और एक सैलरी, और वो है आउटलायर। आउटलायर मतलब याद है आपको? हमने आउटलायर देखा था। यस मैम। तो क्या मैम होता जैसे है? इसका कोई मीनिंग ना हो या कोई सैलरी मिसिंग हो, इस तरह का कोई करना। नहीं। आउटलायर्स स्पेस। हम्म, मैम, मैम डिफरेंट टाइप का बिल्कुल। डिफरेंट डेटा, अनयूजुअल डिफरेंट डेटा, डेटा, राइट। यस मैम। अलग, हाँ, सबसे अनयूजुअल। सबसे अलग, राइट। तो जैसे हमारे पास ये कुछ सैलरीज है, इसमें ये है सारे थाउजेंड्स में, लाइक 30,000, 36,000, 47,000। तो इसमें मैं और एक डेटा ऐड कर देती हूँ, जैसे 1200,000। ओके, और अगर अब आप इसका मीन निकालोगे तो इसका मीन क्या आएगा? जैसे 696 आया है प्लस 1200, क्या आएगा इसका मीन? 698 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास 13 हो गए, राइट। सो विल डिवाइड इट बाय 13 इज इक्वल टू, कितना आता है? कर रहा है कोई कैलकुलेट? यस ओके, मैम। तो ये आ जाएगा 145.84 समथिंग। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक डेटा ऐड किया तो ये जो सारा मीन था वो सब चेंज हो गया। तो ये क्या बोल रहा है? मीन इज 145, राइट।
लेकिन ये मीन मोड मीडियन ये क्या है, हमारे सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, जब भी आप कोई भी वे से सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करते हो तो उसका मतलब है कि आपके डेटा के ज़्यादातर एलिमेंट्स उस रेंज में फॉल करते हैं, उस रेंज में आते हैं। जैसे पहले हमारा क्या था, मीन 58, और अगर आप डेटा देखोगे तो हमारे बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 58 के अराउंड है। गेटिंग इट? आया यस मैम। समझ में कि पहले वाले डेटा में जब हमने मीन फाइंड आउट किया था उसमें क्या हो रहा था, ये जो मीन है 58, दिस इज वैल्यू ऑफ मीन। तो ये मीन क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या, कि जो भी आप सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो उसका मतलब है कि आपके डेटा के मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर फॉलिंग अराउंड दिस रेंज, राइट। तो ये हमारा मीन 58 आया, और आप डेटा भी देखोगे तो डेटा में भी आपको दिखेगा कि बहुत सारे आइटम्स 58 के अराउंड है, राइट। लेकिन अभी हमने एक नंबर इसमें ऐड किया जो कि आउटलायर है, तो आउटलायर से आपका मीन पूरा चेंज हो गया, राइट। नाउ ये 145 के अराउंड आपके डेटा में एक भी वैल्यू नहीं है, राइट। तो जब आपके डेटा में आउटलायर होते हैं तो मीन, you cannot use mean as a central tendency because mean is influenced by outliers. Mean will give you wrong results when outliers are present in your data. Got it? यस मैम। Okay. Now let us move to another second measure of central tendency, that is median. Okay. तो median क्या है? Median is often better measure of center than mean. Median is middle value in a set of ordered data. ओके, तो जब भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, मीडियन निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपका डेटा ऑर्डर्ड चाहिए, आपका डेटा सॉर्टेड चाहिए, ओके। सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, लेकिन डेटा आपका सॉर्टेड चाहिए। और वो सॉर्टेड डेटा में जो भी आपका मिडल वैल्यू होगा, वो मिडल वैल्यू क्या है, middle value is मीडियन। nothing but the median, right? नाउ यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम है कि हम क्या करने वाले, मिडल वैल्यू फाइंड आउट करने वाले, राइट। तो जैसे हमारे पास डेटा में है 5 नंबर्स, तो 5 नंबर्स का मीडियन आप निकाल सकते हो। वो होगा, जब अगर आपका डेटा ऑर्डर्ड है तो जो थर्ड एलिमेंट होगा वो होगा आपका मीडियन, राइट। थर्ड एलिमेंट होगा मिडल एलिमेंट, तो वो हो सकता है आपका मीडियन, राइट। लेकिन अगर आपके पास डेटा में 6 एलिमेंट्स हैं तो आपको एक सिंगल एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि सेंटर में है या मिडल वैल्यू है, राइट। आ रहा है समझ में? यस मैम। तब हम क्या करते हैं कि जो 2 सेंटर के नंबर होते हैं उनका एवरेज निकालते हैं और वो होता है हमारा मीडियन। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल में यू कैन सी अगेन सेम डेटा वी हैव टेकन, राइट। और ये अगर आप देखोगे तो ये सॉर्टेड है, राइट। तो सॉर्टेड है, इसमें कितने नंबर्स है, 12, राइट। तो पहले तो कंसिडर करो कि ये जैसे 110 नहीं है, इसमें 70 तक ही हमारे नंबर्स है, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 11। ओके, और सॉर्टेड है तो इसमें आपका मीडियन क्या आएगा, यस मीडियन बता सकते हो व्हेन 110 इज नॉट देयर, क्या आएगा मीडियन? यस कोई भी बता दो, आई जस्ट एक्सप्लेन यू। मैम 6 नंबर का जो वो 6 एलिमेंट है नंबर वो का, राइट। 50 तो 6 52। नंबर का एलिमेंट है 52, तो क्या आएगा हमारा यस मैम। मीडियन, 52। 11/2 करेंगे मैम, फिर जो वैल्यू यदि पॉइंट में आ रही है तो उसमें एक जोड़ देते हैं।
नहीं, यहाँ पे आएगा 6 नंबर पे जो एलिमेंट है वो आएगा हमारा मीडियन, राइट, जब हम 110 कंसीडर नहीं कर रहे, राइट। नाउ इफ वी कंसीडर दिस 110 इन द डेटा सेट, हमारे पास कितने वैल्यूज हो जाएंगे, 12, राइट। तो 12 अगर डेटा एलिमेंट्स है तो उसमें से हमें मिडल वैल्यू नहीं मिल सकता, राइट, बिकॉज देयर विल बी टू मिडल वैल्यूज, 52 भी होगा, 56 भी होगा, राइट। तो ये हम क्या करेंगे, 52 और 56 का एवरेज निकालेंगे एंड दैट एवरेज इज 54। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो आपको एवरेज निकाल के मीडियन निकालना पड़ेगा। इन दिस केस वी हैव सैलरी 54,000 इज द मीडियन, okay, and now here median is a robust measure of central tendency बिकॉज इट इज लेस अफेक्टेड बाय आउटलायर, ओके। तो जैसे मीन पे हमने देखा कि आउटलायर का इन्फ्लुएंस होता है, आउटलायर से मीन आपका पूरा चेंज हो जाता है, वैसे मीडियन का नहीं होता है, ठीक है। तो आउटलायर भी प्रेजेंट है तो मीन जैसा इतना अफेक्ट नहीं करता है मीडियन का, तो वी कैन यूज मीडियन इंस्टेड ऑफ मीन इफ सम आउटलायर्स आर प्रेजेंट इन योर डेटा। गॉट इट? Yes, ma'am. Okay. And now next measure of central tendency is mode. Okay. Now mode is value that occurs most frequently in a data set. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज को सॉर्ट करना है, ओके। सॉर्टिंग इज नॉट नेसेसरी, लेकिन सॉर्ट करते हैं तो आपको इजी होता है निकालना कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है, ठीक है। एंड व्हेन you sort your data, you just have to check which value has occurred how many times in your data, और जो सबसे ज्यादा बार आपके डेटा में जो वैल्यू आई है दैट इज नथिंग बट योर मोड, ओके। तो ये मोड एक ऐसा मेजर है जो आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों भी एट्रीब्यूट्स के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंस समझो कि जो हमने मीन और मीडियन देखा, मीन और मीडियन ओनली वर्क ऑन कंटिन्यूअस डेटा, आ रहा है समझ में? मीन और मीडियन यस मैम। कैन ओनली वर्क ऑन कंटिन्यूअस डेटा। व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा? क्या होता है कंटिन्यूअस डेटा? मैम जो एक दूसरे से मैच करता हुआ हो, कोई उसमें पैटर्न बन रहा हो कंटिन्यूस। नो, कंटिन्यूअस डेटा, सॉरी, हाँ कंटिन्यूअस ही बताया ना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस अभी यस मैम। हमने जो देखा, राइट। तो कंटिन्यूअस हाँ क्या मैम। होता है, रियल नंबर। तो ये जो मीन और मोड है, सॉरी मीन और मीडियन है, वो सिर्फ आप कंटिन्यूअस डेटा पे ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपके रियल नंबर्स है डेटा में उस पे ही आप मीन और मीडियन अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट? ओके मैम। हाँ, अभी हमारे पास थर्ड क्या है, मोड। मोड मतलब क्या? मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट, ओके। तो अभी अगर आप सेम एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई है? यस, टेल मी। 52 मैम और 70। 52 और 70, राइट। तो इस डेटा के लिए हमारे पास दो मोड है, 52 एंड 70, राइट। नाउ अगर ऐसे समझो कि ये नंबर्स की जगह पे आपके पास कुछ अलग वैल्यू होते जो कि लेबल है, जैसे आपके ये नॉमिनल डेटा होता है, जैसे हेयर कलर है, ठीक है। तो हेयर कलर होता है ऐसे ब्लैक, देन ब्लॉन्ड, ओके, रेड, ग्रे, देन अगेन ग्रे, रेड, ब्लैक, ओके, एंड रेड, ओके। तो इस पे भी आप मोड फाइंड आउट कर सकते हो। क्या है मोड इस डेटा का, हेयर कलर का? कैन एनीवन टेल? मैम इसमें ग्रे भी हो जाएगा और ब्लैक भी 2 बार है इसलिए। ब्लैक दो आ रहा है लेकिन रेड 3 बार आया है, सॉरी मैम। हाँ रेड। तो क्या है मोड? मोड इज रेड।
रेड, राइट। तो नो मैटर आप कौन से टाइप का डेटा यूज कर रहे हो, कौन से टाइप का डेटा आपके पास है, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, आप मोड फाइंड आउट कर सकते हो। गॉट इट। वैसे अगर आपके पास ये ब्लैक ब्लू ऐसे हेयर कलर है तो उसका आप मीन नहीं निकाल सकते या फिर मीडियन भी नहीं निकाल सकते, but you can find mode for such value. Okay, so mode is applicable for discrete as well as continuous values. Got it? यस मैम। Okay. Now we have various types of data set. Okay, based on like कितने मोड प्रेजेंट है। जैसे हमने इस डेटा में देखा, ये जो नंबर वाला डेटा था इसमें हमारे पास दो मोड थे, 52 एंड 70। So such data is called as bimodal data set. Bimodal dataset contains two modes. Okay, if you have only one mode in your data, like this hair color, we have only one mode, that is red. This type of data is called as unimodal data. Okay, there can be three modes present in your data, like if ये जो डेटा है इसमें अगर मैं और एक 110 ऐड कर देती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 52, 70 और 110 ऐसे तीन मोड आ जाएंगे, राइट। सो सच डेटा is called as trimodal data set. Okay, unimodal means one mode, bimodal two mode, trimodal three mode, and there can be multiple modes or more than three modes. So such data set is called as multimodal data set. Okay, and sometimes for some data, there is no mode exist. That means if all data values occur only once. अगर आपके डेटा सेट में हर एक वैल्यू एक ही बार एग्जिस्ट करती है तो सच डेटा डज नॉट हैव एनी मोड, एंड ऐसे डेटा में कुछ मोड नहीं होता तो उसको कहते हैं नो मोड। आया समझ में मीन मोड मीडियन? हाँ मैम। Let us move to the next. One more thing is there for central tendency, that is mid range. Okay, now mid range is very simple. Mid range क्या होता है? Average of largest and smallest value in the numeric data set. Okay, तो ये जो mid range है ये भी किस पे चलेगा? सिर्फ continuous values पे, continuous attributes पे। ठीक है, तो मिड रेंज कैसे फाइंड आउट करना है? सिंपली यू जस्ट हैव टू टेक लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और उनका एवरेज निकालना है। जैसे अगर आप फिर से वही डेटा सेट ले ले तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 30, लार्जेस्ट नंबर है 110, ये दोनों नंबर हम ले लेंगे और इनका जो एवरेज आएगा 140 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 70। तो ये 70 क्या हो गया इस डेटा का? मिड रेंज। एनी डाउट इन मिड रेंज? नो मैम। ओके, ठीक है। तो डेटा जब आप प्लॉट करते हो, ओके, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्क्यूनेस का, वो हम देखेंगे। जो भी डेटा पॉइंट्स है आपके पास, जब भी आप वो प्लॉट करते हो ग्राफ पे तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर आपका डेटा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उस केस में आपका मीन मोड मीडियन तीनों भी एक ही पॉइंट पे आएगा, सेम आएगा। गेटिंग इट? और अगर आपका डेटा सिमेट्रिक नहीं है तो एक तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड हो सकता है या निगेटिवली स्क्यूड हो सकता है। तो डेटा आपका अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उसमें क्या होता है? योर मोड विल बी लेस देन मीडियन एंड मीन। अगर आपका डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है तो उसमें मोड विल बी लेस देन मीडियन एंड मीन। और अगर आपका डेटा निगेटिवली स्क्यूड है तो उसमें योर मोड विल बी ग्रेटर देन मीन एंड मीडियन। ओके, या फिर यू कैन से वाइस वर्सा कि अगर आपका मोड मीन और मीडियन से लेस है
तो आप कह सकते हो कि डेटा इज पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर आपका मोड मोड की जो वैल्यू आएगी वो अगर आपके मीन और मीडियन से ग्रेटर है तो आप कह सकते हैं कि डेटा इज निगेटिवली स्क्यूड। ओके। और अगर जब भी आप प्लॉट करोगे तो आपको वो वैसे ही दिखेगा। जब डेटा निगेटिवली स्क्यूड होता है तब भी आपका मोड ग्रेटर होता है मीन और मीडियन से, और जब आपका डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तब भी आपका मोड लेस होता है मीडियन और मीन से। ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्क्यूनेस। समझ में आया ये स्क्यूनेस? यस मैम। ओके। मैम ये यूज कहाँ पे होगा? ये डेटा का यूज ये जो स्क्यूनेस यूज होता है जब भी आपको डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है कि आपका डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डेटा माइनिंग में यूज होता है इसका। जब हम आगे डेटा माइनिंग के कुछ एल्गोरिदम्स देखेंगे, आगे आपको इसका रेफरेंस आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। डेटा हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो समझने के लिए हमें ये स्क्यूनेस यूज होता है। ठीक है। यस, एनी डाउट? नो डाउट? नो मैम। ओके। तो आपको अभी मीन मोड मीडियन सब समझ में आ गया। तो अगर आपको कुछ डेटा दिया जाए तो कैन यू कैलकुलेट मीन मोड मीडियन ऑफ दैट डेटा? यस मैम। ओके, सो लेट अस चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट में? कैलकुलेट द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा सेट एंड सम वैल्यूज आर गिवन, यू हैव टू कैलकुलेट मीन ऑफ दिस। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन? मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन में 12 होगा। हम्म, क्या आएगा 12 मीन? 12। राइट, मीन फॉर दिस डेटा इज इक्वल टू 12। कैसे कैलकुलेट किया? मैम जितने भी एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं कितने हैं, तो 5 हैं जो इवन है, सॉरी ऑड है, और ऑड के लिए n/2, तो n/2 प्लस 1 n बाई टू इस प्लस फॉर्मूले से। वन यस मैम। ये इस मीन फॉर्मूले पूछ से। रही हूँ मैं। मीन का क्या फॉर्मूला है? सॉरी मैम। मीन क्या है मैम, सारे नंबर्स को ऐड करके और जितने टोटल एलिमेंट्स हैं राइट, उससे डिवाइड उसमें से करना है। डिवाइड। तो ये अगर सारे नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 60, और 60 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको मिलेगा 12। तो मीन है 12। ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट डेटा फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा सेट। तो इसका आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन का सबसे पहला स्टेप क्या है? मैम सॉर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट करेंगे, राइट? इफ यू सी दिस डेटा इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, ऑलरेडी सॉर्ट किया हुआ है डेटा। देन सेकेंड इज, मैम उसके बाद। हाँ, कितने नंबर से सेट में? 1 2 3 4 यस मैम। 5 6 7, राइट? 7 नंबर से। तो दिस नंबर, दिस नंबर इज ऑड। तो अगर ऑड है तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑड है तो क्या होता है? मीडियन, मिडल वैल्यू। तो इसका मिडल वैल्यू है 12, राइट?
Yes, ma'am. तो ये सेकंड का मीडियन आया, मीडियन भी आया 12, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा सेट। अगेन आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज सॉर्ट, लेकिन डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितने एलिमेंट्स है इस सेट में? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 8 एलिमेंट्स। 8 है मैम। 8 है राइट। तो अभी इवन है, इवन है तो क्या करेंगे? इवन है तो क्या करेंगे? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है तो क्या करेंगे? बताओ जल्दी। अगर याद नहीं है तो वैसे भी बताओ, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नहीं आ रहा है किसी को? क्या आएगा इसका मीडियन? नहीं आ रहा है क्या किसी को? नो मैम। जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होते हैं, अगर ऑड है तो हम क्या करते हैं, जो मिडिल वैल्यू है वो मीडियन होता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है, जैसे इस सेट में है 8 एलिमेंट, तो हम क्या करते हैं, जो सेंटर की दो वैल्यूज है, तो यहाँ पे कौन सी है, 6 और 7, तो इनका एवरेज निकालेंगे। तो इनका एवरेज कैसे सिक्स निकालते हैं? पॉइंट 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा? 6.5। 6.5। तो ये क्या हो गया, मीडियन। तो हियर मीडियन इज इक्वल टू 6.5। ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का, ये थर्ड का। देन नेक्स्ट इज डिटरमाइन द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा सेट। मोड क्या होता है? मैम जो नंबर सेट्स दिए गए हैं इनमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो मोड कहलाता है। जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो होता है मोड, राइट। तो इसमें मोड क्या आएगा, वेरी सिंपल। ये डेटा आपका बहुत छोटा है तो आपको समझ ठीक में है। आएगा। 6, बिकॉज ठीक है। 6 आया है 3 बार, बाकी कोई भी एलिमेंट 3 बार नहीं आया। तो इसका मोड क्या आएगा, 6। यस मैम। एंड लास्ट इज कैलकुलेट द मिड रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा सेट। राइट, मिड रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिनिमम वैल्यू और जो मैक्सिमम वैल्यू उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का जो एवरेज होता है वो होता है मिड रेंज। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 7। 7, मैक्सिमम वैल्यू 30, 30 एंड डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो क्या आएगा, 36. 18.5। 18.5। 5. 18.5। तो मिड रेंज is 18.5। Any doubt in this measure of central tendency? नो मैम। Okay. Now next टॉपिक हम देखेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन ऑफ डेटा। तो ये डिस्पर्शन आपको बताता है कि हाउ योर डेटा इज स्प्रेड, आपका डेटा कैसे स्प्रेड हुआ है, वो अगर आपको देखना है और या फिर वो आपको मेजर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट मेजर्स। तो यहाँ पे उस मेजर्स की लिस्ट दी हुई है, यू कैन सी रेंज, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। These are the
बेसिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ डेटा। ओके, जब आप ये सीख जाओगे उसके बाद यू कैन अंडरस्टैंड 5 नंबर समरी एंड बॉक्स प्लॉट। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये हम जो कुछ सब देख रहे हैं दीज ऑल आर स्टैटिस्टिकल टर्म्स, ये सब टर्म्स है जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं। और हमने डेटा माइनिंग के फर्स्ट यूनिट में देखा था कि स्टैटिस्टिक्स इज द मेजर फील्ड यूज्ड इन डेटा माइनिंग, राइट। तो डेटा माइनिंग के लिए आपको सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए, और ये सब स्टैटिस्टिक की टर्म्स डेटा माइनिंग में यूज होती है। ओके, सो वी विल सी वन बाय वन दीज ऑल आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, तो हम ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट करते हैं। ये जो पहले पहले वाली टर्म्स है वो बहुत सिंपल है। सो विल स्टार्ट विथ रेंज। ठीक है, तो ये रेंज क्या है? Range is the difference between largest and smallest value in the data set, right? Very simple, very straightforward. क्या है? सिर्फ आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसका डिफरेंस जो होता है दैट इज नथिंग बट द रेंज। ठीक है, तो अगर आपको ये डेटा सेट दिया है तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू है 110, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 30, और अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे 110 माइनस 30 इज इक्वल टू 80। 80 क्या है? इस डेटा का रेंज। एनी डाउट इन रेंज? नो मैम। ओके, नेक्स्ट next you have to listen carefully, otherwise you will get confused. Okay, try to understand, और अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो, I'll repeat. Okay, now next is quantiles. So quantiles are set of values or points that divides the data set into groups of equal size. ठीक है, तो यहाँ पे साइज बताया नहीं गया है, तो जैसे आपके डेटा सेट में 12 पॉइंट्स है और आपको 4 के ग्रुप्स करने हैं। ठीक है, तो कितने ग्रुप बनेंगे? 3। तो the point which is dividing your data set into groups of equal size, that points are called as quantiles. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, these all are data points. ठीक है, और ये डेटा पॉइंट को हमने क्या किया है, ये जो लाइन दिख रहे हैं ना आपको, these lines are nothing but the quantiles. ठीक है, तो ये लाइन क्या कर रही है? लाइन ये आपके डेटा को इक्वल साइज के ग्रुप में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हर एक ये लाइन से जो पार्टीशन हो रहा है उसमें अगर आप देखोगे तो हर एक पार्टीशन में कितने पॉइंट्स है? यहाँ पे हर एक पार्टीशन में हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? मैम 3। 3, right? So every quantile is dividing your data into groups of equal size. Okay, और ये जो डेटा पॉइंट है मतलब ये क्वांटाइल का यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स होंगे, ये डेटा पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइल्स। ओके, so the points which are dividing your data set into group of equal size are called as quantiles. Any doubt? समझ में आया क्वांटाइल? आया समझ में? मैम समझ में आया है। आया है ना? हाँ ठीक है, मैम। बिकॉज ये क्वांटाइल के बेसिस पे मैम इसका हमें कोई एग्जांपल हुआ कि ये ग्राफ के थ्रू इस तरह बताया गया? सी क्वांटाइल एज इट इज हम यूज नहीं करते हैं। क्वांटाइल के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे परसेंटाइल होता है, क्वार्टाइल होता है, वो हम यूज करते हैं। हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो क्वांटाइल के लिए आप बस इतना समझ लो कि डेटा पॉइंट्स और सॉरी पॉइंट्स विच डिवाइड योर डेटा सेट इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज। ओके मैम। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज क्वांटाइल्स। ओके, तो क्वांटाइल के अलग अलग टाइप से जो हम यूज करते हैं, तो क्वांटाइल का एक टाइप होता है क्वार्टाइल। तो आपको क्वार्टाइल और क्वांटाइल में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वार्टाइल देन परसेंटाइल, दीज आर सम टाइप्स ऑफ क्वांटाइल व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे क्वार्टाइल।
ओके, क्वार्टर पता है आपको? क्वार्टर मतलब क्या? मैम जैसे 12 मंथ्स हैं उनके क्वार्टर क्वार्टर देखो, कर दे वन फोर वो पार्ट्स में जैसे जैसे 3 मंथ हमारे, का हाँ 3 मंथ का क्या होता है? एक क्वार्टर इन अ वन ईयर, क्वार्टर। यस राइट? मैम। हाँ, तो यहाँ पे हमने ये 3 मंथ कैसे निकाला? 12 मंथ का होता है 1 ईयर, यस मैम। राइट? और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट? डिवाइडेड बाय 4 किया तो आपको मिलेगा 3। तो 3 मंथ का हो गया एक क्वार्टर, राइट? वैसे ही जितने भी डेटा पॉइंट्स आपके पास है उनको उनको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे? 4 पार्ट्स, 4 इक्वली साइज ग्रुप्स, 4 पार्ट्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी डेटा, ओके मैं रिपीट करती हूँ, आपके डेटा सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपको 4 इक्वली साइज एलिमेंट में डिवाइड करना है। देन ईच पार्ट इज कॉल्ड एज quartile. Okay, not each part but the point which is dividing your data points into 4 equal parts, those 3 points are called as quartiles, right? आपको 4 पार्ट चाहिए, 4 पार्ट के लिए आपको कितने पॉइंट्स लगेंगे? जैसे हमारे पास एक लाइन है, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपको कितने पॉइंट्स लगेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए? मैम दो। 2 पार्ट में डिवाइड करना है ये लाइन को आपको, तो कितने पॉइंट से आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? एक ही पॉइंट लगेगा ना 2 पार्ट में डिवाइड एक करने पॉइंट के पे लिए? है। ओनली वन यस पॉइंट यू विल नीड। तो ये पॉइंट आपको मिल गया, तो इससे ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, राइट? वैसे ही आपके पास और एक लाइन है, इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपको कितने पॉइंट्स लगेंगे? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट्स, राइट? 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यू नीड 2 पॉइंट्स। नाउ वैसे ही आपके पास एक लाइन है जिसको आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपको कितने पॉइंट्स लगेंगे? 3 पॉइंट्स, राइट? तो ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है क्वार्टाइल में। क्वार्टाइल में क्या है कि आपने एक लाइन के ऊपर आपके सारे डेटा पॉइंट्स प्लॉट किए, ठीक है? नाउ द पॉइंट्स विच आर डिवाइडिंग योर डेटा पॉइंट्स इनटू 4 equally sized groups, those points are called as quartiles. तो जैसे Q1 is equal to 10, ये यहाँ पे 10 के यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, this is Q1. Okay, now this Q2 is equal to 13. It is again dividing your data set into equally sized group. ठीक है, तो जैसे आपके पास अगर ये सेम एग्जांपल हमने लिया, जैसे हमारे पास 12 मंथ है, वैसे ही अगर आपके पास 12 पॉइंट्स है, ठीक है, तो ये 12 पॉइंट्स को आपको 3 3 के सेट में डिवाइड करना है, ठीक है? तो ऐसे 4 पार्ट्स बनेंगे। तो वो जो 3 पॉइंट्स है जो आपके सेट को 3 3 पॉइंट्स के सेट में डिवाइड करेंगे, वो 3 पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स। आया समझ में? तो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, हर एक पार्ट में आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स, राइट? तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 20 पॉइंट्स है, तो हमें इसको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, ठीक है? तो अगर 20 पॉइंट्स को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, तो हर एक पार्ट में आपके पास कितने पॉइंट्स आएंगे? 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 पार्ट्स, राइट? 5 पॉइंट्स, हर एक पार्ट में आपके पास 5 पॉइंट्स आएंगे। तो ऐसे 5 पॉइंट्स के बाद जो एक पॉइंट आता है जो कि आपके ये 5 पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज क्वार्टाइल 1। ओके, उसके बाद आगे के जो 5 पॉइंट्स को इक्वली साइज ग्रुप में डिवाइड करता है, उसको कहते हैं हम Q2, दैट इज क्वार्टाइल 2। देन नेक्स्ट 5 पॉइंट्स के बाद जो एक पॉइंट आता है उसको कहते हैं हम Q3, दैट इज क्वार्टाइल 3। आया समझ में? यस मैम। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? तो ये जो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल इज अ टाइप ऑफ क्वांटाइल।
क्वार्टाइल इज टाइप ऑफ क्वांटाइल। ये समझ मैम में आया? क्वार्टाइल को कंपलसरी है 4 क्या? पार्ट में डिवाइड करने इक्वली। हाँ, क्वार्टाइल के क्वार्टाइल को लिए 4 टाइप। यस, क्वार्टाइल के लिए कंपलसरी है कि 4 ही पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, तभी हम उसको क्वार्टाइल बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है? वैसे क्वांटाइल को कुछ लिमिटेशन नहीं है, जब भी आप किसी भी साइज के ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हो तो उसको हम कहते हैं क्वांटाइल। लेकिन क्वांटाइल ये टर्म एक्चुअल में यूज नहीं होता है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ नंबर फिक्स ही करना होता है। ठीक है, तो जैसे हम 4 पार्ट में डिवाइड किया तो हम बोलते हैं उसको क्वार्टाइल। जब हम डेटा सेट को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसको कहते हैं परसेंटाइल और सेंटाइल। ठीक है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे। क्वार्टाइल में आपको कुछ डाउट है? नो मैम। ओके, जस्ट वेट। क्वार्टाइल का हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। सी, सपोज यू हैव लिस्ट ऑफ 10 टेस्ट स्कोर्स फ्रॉम योर क्लास। ओके, दीज आर 10 एलिमेंट्स फ्रॉम योर क्लास। ये क्या है? टेस्ट के स्कोर्स है 10 बच्चों। ओके, नाउ लेट्स से यू वांट टू स्प्लिट दीज स्कोर्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको क्या करना है? यू वांट टू स्प्लिट दिस स्कोर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आपको ये जो डेटा दिया है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो दिस मीन्स यू वांट टू फाइंड द क्वार्टाइल। ओके, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्वार्टाइल। ठीक है, so for that step 1 is you have to order the data. Order means you have to sort your data either in ascending or descending order. Okay, now next step is you have to find the quartile. Okay, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो we have 10 data points. ठीक है, 10 को अगर आप 4 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2.5। 2.5। ठीक है, लेकिन 2.5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी सेट में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में जो होता है वो इंटीजर ही होगा। मतलब एक यस मैम। एलिमेंट होगा Yes, किसी ma'am. सेट में, या 2 एलिमेंट होंगे, या 3 एलिमेंट होंगे। आप ऐसे बोल सकते हो क्या क्लास में 2.5 स्टूडेंट्स है? नो मैम। नहीं, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो आपके सेट को इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये इन दिस केस हम क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करेंगे बाय टेकिंग एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। 65 सॉरी 2.5 चाहिए, तो हम 60 और 65 का एवरेज निकालेंगे, वो होगा हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल। आ रहा है समझ में? यस, देन 75 और 80 का जो एवरेज होगा वो होगा हमारा सेकेंड क्वार्टाइल, और 90 और 95 का जो एवरेज होगा वो होगा हमारा थर्ड क्वार्टाइल। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली? आपके सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल साइज के ग्रुप में डिवाइड करने वाले जो 3 पॉइंट्स है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। गेटिंग इट? तो ये Q1 जब आप फाइंड आउट करोगे 62.5, ये क्या है? एवरेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट इन योर डेटा। जब आप Q2 फाइंड आउट करोगे, Q2 इज 75 75 और 80 का एवरेज है, तो ये क्या है? फिफ्थ और सिक्स एलिमेंट का एवरेज। और ये जब आप देखोगे 90 और 95, ये एलिमेंट है आपके सेट का सेवेंथ सॉरी एट्थ और नाइन्थ एलिमेंट। इनका एवरेज जो होगा वो होगा Q3। जब आपको Q1 मिलेगा तो Q1 क्या होता है कि दिस इज द वैल्यू दैट सेपरेट लोएस्ट 25% ऑफ डेटा। ओके, जब हम
हमारे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक डेटा का साइज क्या होगा 25%, मतलब हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे 25% ऑफ ऑल डेटा। आ रहा है समझ में? यस और नो? यस मैम। तो ऐसे आप क्वार्टाइल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपके डेटा सेट में और 2 एलिमेंट्स होते 12, तो आपको क्वार्टाइल इजीली मिल जाता है। जो आपका फोर्थ पॉइंट होता है, एवरी फोर्थ पॉइंट विल बी योर एवरी थर्ड पॉइंट विल बी योर क्वार्टाइल। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ 120 एंड 125, तो ये कितने एलिमेंट हो गए 12। तो फर्स्ट क्वार्टाइल आपका आता 65, सेकेंड क्वार्टाइल आता 80, थर्ड क्वार्टाइल आता आपका 9, एक मिनट, 95, राइट। तो ये क्या होते हैं आपके Q1, Q2, Q3। लेकिन अभी हमारे यस मैम। पास हमारे डेटा में सिर्फ 10 ही नंबर है, तो इसलिए हमें ये एवरेज निकालना पड़ता है। ओके, so we will stop here for today, we'll continue tomorrow. ओके मैम। Thank you.